Hello friends. So we will continue our current affairs MCQ series and today we will discuss the most important MCQ from 1st July 2020. So let's start. First question. The e-Sanchit portal was introduced with the main objective of the first option is improving coordination between the power, coal and railway ministries to ensure coal supply to power plants. Then we have creating a network for nurturing social entrepreneurship, creating an integrated platform for offering online courses and covering school to postgraduate level, facilitating trading across borders. So, friends, you have to tell that which statement is correct. The objective of e-Sanchit portal was that you have to identify. So, I will give you the information that option A is related to Prakash portal. If we see power, coal, and railway ministry. So, power is generally you can understand it with the कि प्रकाश को बोलते हैं एक तरीके से जो पावर से लाइट्स हम बल्ब करेंगे बल्ब चलाएंगे उनको बेसिकली हिंदी में प्रकाश ही है वो. तो आप इस चीज़ को उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं याद करने के लिए. ये है प्रकाश पोर्टल. उद्यम सखी क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर नर्चरिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. से उद्यम मतलब बिजनेस को आप जनरली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए उद्यम शब्द होता है. सो उद्यम सखी जो पोर्टल है वो बी के लिए क्रिएटिंग अ नेटवर्क फॉर नर्चरिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. देन जो हमारा क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड कवरिंग स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. ये स्वयं पोर्टल है. आपने हो सकता है इसकी वीडियोस देखी भी है यूट्यूब पे. इसका एक पोर्टल है, इनका अपना चैनल है जहाँ पे ये वेरियस सब्जेक्ट्स की पूरा प्लेलिस्ट होती है, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे. तो तीनों आपको पता लग गए. सो अब एक ही ऑप्शन बचा. ई संचित पोर्टल जो है फैसिलिटेटिंग ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. सो इसका आंसर डी है. लेट्स सी कि इसमें लिखा हुआ क्या है. तो टू बेटर फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBEC introduced e-Sanchit, which is an online platform for paperless processing, uploading of documents. ये अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुआ था. This is a single window for Indian custom clearance that allow importers and exporters to upload their clearance document. So जो importers and exporters को clearance document है वो उन दोनों के लिए सिंगल विंडो है जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं. The new interface is proposed to reduce the dependency with the government authorities, thereby reducing time and cost of operating business in India for exporters and importers. Next question. With reference to Permanent Court of Arbitration (PCA), consider the following statements. PCA is not a court in the traditional sense, but provides services of an arbitral tribunal to resolve dispute that arises out of international agreement between member states, international agreement organization or private parties. India is a party to the PCA. So friends, अगर आपने कभी ये इंडस रिवर ट्रीटी में पढ़ा हो, वहाँ पे कुछ डैम्स इंडिया बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रीच किया था. उनका बोलना था, उनका क्लेम था कि इंडिया जो उन पर डैम बना रहा है दैट इज़ अगेंस्ट द इंडस वाटर ट्रीटी. सो बेसिकली जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये एज सच ट्रेडिशनल सेंस में कोर्ट नहीं है, बट ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल प्रोवाइड करता है ऑन द डिस्प्यूट्स दैट अराइज ड्यू टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज़ जो दो देशों के बीच में या दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में भी साइन होती हैं. जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को अगर हम देखें तो बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और इंडिया इसका पार्ट है. इंडिया इज़ अ पार्टी टू द PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. So the Permanent Court of Arbitration, this was established by the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, concluded at The Hague, ये नीदरलैंड में है, in 1899 during the first Hague Peace Conference. The 1899 convention was revised at the second Hague Peace Conference in 1907. So statement 1 correct है. PCA is not a court in the traditional sense but provides services of an arbitral
tribunal to resolve disputes that arise out of international agreements between member states, international organizations, or private parties. The cases span a range of legal issues involving territorial, maritime boundaries, sovereignty, human rights, international investment, and international and regional trade. The PC has no sitting judge. That's why इसको बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल टाइप का कोर्ट नहीं है. The parties themselves select the arbitrators. The PC is an official United Nation observer. ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर भी है और इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है. The PC has 122 contracting parties which have acceded to one or both of the PC's founding convention. जो दो कन्वेंशन है आपको अभी बताया 1899 एंड 1907 के हैं. सो उसके 122 इसमें पार्टी हैं जिन्होंने या तो एक या दोनों कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया, एक्सीड किया है. स्टेटमेंट 2 करेक्ट था. इंडिया इसका पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ 1899. Then the most important question, consider the following industries: petroleum and refinery production, fertilizer production, steel production, natural gas production. The question is that you have to arrange them in decreasing order of their weightage in the index of 8 core industries ICI. So friends, ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आप समझ सकते हो, बट ये आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपने इसकी रिपोर्ट पढ़ी हो. फिर भी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आपको अगर इन चारों को कंपेयर करना है, इसका आंसर बी है एक्चुअली. ये सेकंड जो है लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका वेटेज, तो सेकंड का वेटेज सबसे कम है इन चारों में. सो आपको एक सेंस में समझ सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर पेट्रोलियम से कंपेयर करें, स्टील से कंपेयर करें या इवन नेचुरल गैस से कंपेयर करें, तो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन आप एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझ सकते हैं कि इतना ना होता होगा जितना इन बाकी तीनों का होता है. उस सेंस में आप 2 को यहाँ पे कर सकते हैं. और ऑब्वियसली फ्रेंड, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो वो तो फर्स्ट होगा ही. तो आप इजीली फर्स्ट एंड 2 को तो आइडेंटिफाई कर ही सकते थे इसमें. और अगर आपने एक बार फर्स्ट और 2 को आइडेंटिफाई कर लिया तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें फर्स्ट शुरू में और सेकंड लास्ट में हो. तो उस सेंस में भी आपका करेक्ट आंसर हो ही जाना है. फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का है, देन स्टील का वेटेज है, देन नेचुरल गैस प्रोडक्शन का वेटेज है, देन फर्टिलाइज़र का लीस्ट वेटेज है. द मंथली इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसका मंथली इंडेक्स है या प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 core industries is to provide an advanced indication on production performance of industries of core nature before the release of index of industrial production by the Central Statistics Office. So जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP है, ये इसके उसके रिलीज से पहले ये जो हमारा ICI है इसकी इंडेक्स आता है. These industries are likely to impact on general economic activities as well as industrial activities. जो हमारे यहाँ पे इंडिया में 8 कोर इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाइड है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स हैं. और ये कंप्राइज करती हैं 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द IIP. सो IIP में हमारे 3 इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आप देख लेना इसको. इसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन IIP. अगर आप इसमें देखें, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है 28.04. देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, फिर स्टील का है, कोल, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स. आप एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझ सकते हैं कि लास्ट में फर्टिलाइज़र है, देन सीमेंट है. एक आइडिया आपको होना चाहिए, एग्जैक्ट ना भी पता हो. और जो इंटरनेशनल इंडियन जो ये मैंने आपको बताया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आई थिंक इसमें 3 सेक्टर होते हैं, 3 इंडस्ट्री होती है. एक तो मिनरल होती है, एक माइनिंग, मिनरल माइनिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग. 3 इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और जो ICI है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, ये इसमें 8 कोर इंडस्ट्री है, हमने डिस्कस की है. और ये इसको रिलीज़ कौन करता है? ICI इज़ रिलीज बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जबकि जो IIP है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिलीज़ करता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए.
The base year of ICI is 2011 and 12. Then the main objective of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is sustainable and responsible development of the fishery sector, direct benefit transfer DBT scheme for nutritional support to tuberculosis patient, providing unemployment allowance to worker rendered jobless due to changing employment pattern, providing insurance coverage and financial support to the farmer in the event of failure of any of the notified crops as a result of natural calamity, pest and disease. सो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी ये मत्स्य संपदा योजना वर्ड मिले तो समझ जाना वो फिशरी से रिलेटेड है. सो इसका करेक्ट आंसर ए है. अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर. So in May 2020, the central government launched the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). It is a scheme to bring about blue revolution. क्योंकि जो फिशरीज का प्रोडक्शन है उसके लिए हम ब्लू रिवोल्यूशन यूज़ करते हैं थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया एट अ टोटल इन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 crore. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be implemented as an umbrella scheme with two separate components, namely Central Sector Scheme and Centrally Sponsored Scheme (CSS). The scheme will be implemented during a period of 5 years from financial year 2020-21 to financial year 2024-25. What are the benefits? It will address the critical gaps in the fishery sector so that they can realize the full potential of this fishery sector. Augmenting fish production and productivity at a sustained average annual growth rate of about 9% to achieve a target of 22 million metric ton by 2024-25 through sustainable and responsible fishing practices. Also, it will improve availability of certified quality fish seed and feed, traceability in fish and including effective aquatic health management. It will also help in the creation of critical infrastructure including modernization and strengthening of value chain, creation of direct gainful employment opportunity to about 50 lakh fishers, fish farmers, fish workers, fish vendors and other rural urban population in fishing and allied activities, and about twice this number as indirect employment opportunity including enhancement of their income. It will also boost the investment in fishery sector and increase of competitiveness of fish and fishery product, doubling of fishers, fish farmer and fish worker income by 2024, social, physical and economic security for fishers and fish workers. फ्रेंड्स, फिर भी हम जो बाकी तीन थे उनको भी देख लेते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑप्शन डी इसमें लिखा हुआ है. डी में क्या था? Providing insurance coverage and financial support to the farmer in the event of failure of any of the notified crop as a result of natural calamities, pest and disease. So ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, बीमा लिखा हुआ है और वही उसमें दिया भी हुआ है. ऑप्शन सी जो हमारा है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का है. प्रोवाइडिंग ऑप्शन सी या providing unemployment allowance to worker rendered jobless due to the changing unemployment pattern. ये है हमारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना. और जो हमारा ऑप्शन बी है वो निक्षय पोषण योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट. तो न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, तो अगर आपको इतना पता है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. निक्षय पोषण योजना होगा वो. देन which among the following are component of India's external debt? Commercial borrowing, sovereign borrowing, non-residential ordinary rupee NRO account deposit, trade credits, foreign direct investment. So friends, इसमें FDI को छोड़ के बाकी सारे इंडिया के एक्सटर्नल डेट ही हैं. अगर आपको इनके बारे में पता है तो दे आर बेसिकली इंडियाज एक्सटर्नल डेट. सो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3 and 4 ओनली. क्योंकि FDI इज़ नॉट अ डेट, ये तो इन्वेस्टमेंट है जो हमारी कंट्री में हुआ है. इंडिया एक्सटर्नल डेट इंक्लूड कमर्शियल बोरोइंग, सॉवरेन बोरोइंग, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रूपी NRO अकाउंट्स डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल डेट अकाउंट. देन दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज गिवन yesterday. Consider the following statements about the minimum support price MSP.
It is announced every year before the sowing season. It is approved by the Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. वी विल सी कि इसको अप्रूव करता कौन है. सो हाउ एवर इट इज़ अनाउंस्ड एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन. Minimum support price, it is a form of market intervention by the government of India to ensure agriculture producers against any shortfall in farm prices. The minimum support prices are a guaranteed price for their produce from the government. The major objectives are to support the farmers from distress sales and to procure food grain from public distribution. Now MSP is announced every year before the sowing season to provide incentive to farmers for raising the production of crops. Now it is approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. जबकि ऑप्शन में क्या था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि इनकरेक्ट है. सो आपको पता होना चाहिए कि ये अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. सो ये बेसिकली रिकमेंड करता है, अप्रूव ये नहीं करता. सो इट इज़ अ रिकमेंडिंग बॉडी, नॉट अ अप्रूवल बॉडी. सो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर. ये जैन 1965 में एग्जिस्टेंस में है. इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड minimum support prices to incentivize the cultivators to adopt modern technology, raise productivity and overall grain production in line with the emerging demand patterns in the country. As of now, CACP recommends MSPs of 23 commodities which comprise 7 cereals. इसमें कि पैडी, wheat, maize, sorghum, पल, millets, barley और रगी है. 5 types of pulses जिसमें ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, lentil और 7 oil seed, groundnut, rapeseed, mustard, सोयाबीन, सीसमम एंड सनफ्लावर है, सेफ्लावर, नाइगर सीड. और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें कॉपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रो जूट है. तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए CACP के बारे में. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये रिकमेंड करता है, अप्रूव नहीं करता. ओके. तो आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए ये है कि विद रेफरेंस टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. दे आर इंडिपेंडेंट कंपनीज हु इवेल्युएट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इशूअर्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द RBI. Most of the credit rating agency in India follow the investor pays model. Which of the statement given above are correct? So we will discuss the answer of this question in tomorrow's video. So we end our discussion here. If you have any doubt, do ask in the comment section. So okay friends, thank you and all the best.